Good morning, students. I am Anjali Gupta, Department of Zoology, HD Jain College, Ara. Welcome to my YouTube channel. ये चैनल मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स जो कि लॉकडाउन में कॉलेज आने से वंचित हैं उनके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। वो ताकि वो अपने घर पे रह के यूट्यूब के माध्यम से अपनी क्लासेस को कर सके। चूंकि हमारे बच्चे अधिकतर हिंदी मीडियम से आते हैं, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगी। ये क्लास स्पेशली डिग्री पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 2 के लिए है, जिसमें कि हमें एनिमल बिहेवियर पढ़ना है। तो पैरेंटल बिहेवियर के बारे में we have to study parental care in fishes and parental care in animals. But before that, ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज पैरेंटल केयर। पैरेंटल केयर एज वी नो, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें केयर करते हैं, दैट इज अ पैरेंटल केयर। बट इन ह्यूमन बीइंग इट इज वो बहुत ज्यादा है। बट इन एनिमल्स या लोअर एनिमल्स में ये अलग अलग ग्रेड में देखने को मिलता है। तो parental care is it may be from both the parents, male, female, giving food, shelter and protection to their offsprings is parental care. तो ये जो अपने वो बच्चों के लिए फूड, शेल्टर या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो एक पेरेंटल केयर है। और चाहे वो किसी भी तरह के एनिमल हो जो बिहेवियर ज्यादा पेरेंटल केयर शो करते हो या ना करते हो, सोशल एनिमल हो या नॉन सोशल हो, एटलीस्ट ट्वाइस दे हैव टू इंटरेक्ट सोशली, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मीटिंग एंड एट द टाइम ऑफ द पेरेंटल केयर। Or it includes the metabolic investment of the primary sex cells. Means parental care is it starts from the producing of gametes, not from the choosing their mating partners. It does not include effort to finding the member of opposite sex. It is the mating effect, not the parental care. Therefore, intensity of parental care depends upon it is the intensity of sexual selection is equal to relative parental investment by male versus females. Definition some authors has defined as I have given one Trivers 1972 and latest definition of 2011. According to this, parental care is defined as a form of parental behavior that increases an individual offspring's fitness at cost of parents' ability to invest in the future offspring. इसका मतलब है कि ये पेरेंट्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस रूप से कितना पेरेंटल केयर शो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स एबिलिटी, और वो एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स में कि उनकी ब्रीड जो है वो कैसी आएगी। जो नेक्स्ट एग्जाम definition है, that is the parental care can be defined as any non-genetic contribution by a parent that increase the fitness of offspring and can occur before or after laying or birth. इसमें कहा जा रहा है इस डेफिनेशन में कि इट इज अ नॉन जेनेटिक कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट। जैसे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन में होता है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर क्रोमोसोम, दे आर द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, बट हियर इट इज अ नॉन जेनेटिक कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स टू इंक्रीज द फिटनेस ऑफ ऑफस्प्रिंग. द पेरेंट्स आर contributing non-genetically and it may be occur before laying egg or after giving birth, after hatching, after some animals take care of their young ones also. Now we can see what sorry, type of parental cares are seen in different groups of animals. Because in part 1 we have to study
invertebrates, mainly the invertebrates, but here we briefly see some animals, that is that in arthropods, arthropod we can see bees, wasps, ants, termites provides shelter and food to their larvae. Another example is that spiders, scorpion carry brood on their back. Like this fish, we have to study in detail fish and amphibian. I will upload the next video of this. Fish show parental care making by nest, building nest, egg guarding, oral brooding, cleaning, and fanning eggs. And one more thing is that in fishes, parental care are mostly exhibited by male. In amphibians, frog, toads, and salamanders shows parental care. We know that midwife toad carried fertilized eggs on the back, and some make nest also. In reptiles we can see that parental care is not very common, उसमें बहुत ज्यादा common नहीं है, but some उसमें कुछ है जो कुछ nest और अपने young ones की देखभाल करते हैं. In birds में देखा जाता है कि both the parents are involved. ये you can see in your environment कि both the parents are involved in making nest, incubating the eggs and feeding their young ones. And mammals में most care is provided by females. In mammals में mostly females exhibit parental care because there is a gestation period and lactation period. These are exhibited by females only. Less than 5% of males shows direct parental care. Now there are दो तरह से parental care होता है. दो टाइप से कह सकते हैं कि एक जो बर्थ के पहले एक पेरेंटल केयर हो रहा है, एग लेइंग के पहले, और एक है बर्थ के बाद. तो ये फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग देखते हैं कि केयर बिफोर बर्थ. इसमें इन्वेस्टमेंट इन गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट के प्रोडक्शन में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं. उसका एक एग्जांपल है फीमेल कैटिडिड का कि वो जब आफ्टर कॉपुलेशन when it receives the sperms from the male for fertilization of egg, but वो अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा स्पर्म्स खा जाती है, और वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपिंग एग है वो लार्ज बने और एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सके. प्रिपरेशन फॉर द हाउसिंग, नेस्ट बनाना है, बरोज बनाना है, टेरिटरीज बनाना है, ब्रूट्स बनाना, जहां एग्स और हैचिंग्स को रखा जाए, तो वो प्रिपरेशन फॉर द हाउसिंग, ये सब एग लेइंग या बर्थ के बिफोर होता है. वी कैन सी कि जब बच्चे इन बर्ड्स वी कैन सी कि वो अंडे देने के पहले वो अपने घोंसले बनाने स्टार्ट कर देते हैं. एंड केयर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स आफ्टर एग लेइंग, बहुत सारे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में हम लोग देखते हैं, कुछ फिशेस में भी है कि एग्स आर गार्डेड बाय मेल और फीमेल पेरेंट. वाटर बग और सी हॉर्स में भी कुछ देखा जाता है कि उसमें फर्टिलाइज्ड एग्स को गार्ड किया जाता है या टेक केयर उसका लिया जाता है. एंड सेकंड है केयर आफ्टर बर्थ. तो केयर आफ्टर बर्थ क्या पेरेंटल केयर दे रहे हैं, तो ये प्रोविजनिंग और प्रोटेक्टिंग. या प्रोविजनिंग मीन्स फीडिंग बाय बर्ड्स, माउथ ब्रूडिंग इन सम फिशेस, किसी फिश में माउथ के अंदर ब्रूड करते हैं, और लैक्टेशन इन मैमल्स. ये सब आफ्टर बर्थ केयर है पेरेंट्स की ओर से. केयर फॉलोइंग न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस, फिर भी ये आफ्टर बर्थ भी, जहाँ पे हम बर्ड्स में एग्जांपल देखते हैं कि दे स्टार्ट फीडिंग, और जब वो अपने आप को उड़ना सीख जाते हैं या अपने आप पे रहना सीख जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं. बट इन सम एक्सटेंट वहां उसके बाद भी कुछ पेरेंटल केयर देखा जा सकता है. तो दीज कम अंडर द heading care following nutritional independence. तो सपोर्ट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोशल प्राइमेट्स, सोशल प्राइमेट्स में जब किसी दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उस समय वो अपने जो बच्चे जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं उनकी भी केयर करते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स,
Royal terns and frigate birds keep feeding their chicks even after they have left the parent. उनके पेरेंट्स के छोड़ने के बाद भी वो ये एग्जांपल्स जो मैंने बताया उनको वो फीड करते हैं. अब नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर, ये किस टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी में सबसे फर्स्ट की नीदर पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द पेरेंटल केयर, जिसमें कि कोई पेरेंटल केयर कुछ शो नहीं करते हैं. तो ये जिसमें पेरेंटल केयर शो ही नहीं होता, जिसमें मोस्टली इंसेक्ट्स हैं, सॉलिटरी इंसेक्ट्स हैं, टेलियोस्ट फिशेज हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, कुछ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं. और नेक्स्ट है कि बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन यंग वंस, sorry, in caring of young ones, जिसमें both parents, few species of birds and fishes are involved, where we can see in details in next video, where both the parents are involved in young ones. Next one is mostly females are involved in care of young. In some species of fishes, reptiles, birds and primate, mostly the female parent or mother are most involved in the care of young ones, and in some cases mostly male are involved in the care of young ones. And next is something different, when relatives are involved in care of young one, neither of the parent, कोई parents नहीं, relatives है जिसको हम लोग एलो पेरेंटिंग कहते हैं, जिसमें some eusocial insects है, उसमें देखा जाता है कि sisters are involved in their parental care. So these come under this allo parenting heading. Now, what are the benefits of the parental care? What are the benefits of the parental care? Parental care के क्या-क्या benefits हो सकते हैं? तो benefits में है कि parents raises offspring survival during the stage in which parents and offsprings are associated. तो एक parents और offspring के बीच में एक association show करता है जो उस stage पर develop होता है जहाँ से ये parental care start होता है. और फिर नेक्स्ट है कि पेरेंट इम्प्रूव सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग क्वालिटी, जिसमें ये पेरेंटल केयर की वजह से उनकी जो ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती है, विच लीड टू एन अपग्रेड इन ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल और द रिप्रोडक्टिव सर्फेस, जो उन ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के लिए बहुत फिट होते हैं और रिप्रोडक्टिव सक्सेस उनका जाता होता है इन द फ्यूचर. दैट इज व्हेन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर नो लॉन्गर एसोसिएटेड, मतलब इसका आफ्टर पेरेंटल केयर भी इसकी असर जो है वो रहती है एज द रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन द offsprings. Next one is that parents enhance offspring reproductive success during the stage in which parents and offsprings are associated. और जहाँ पे पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एसोसिएटेड है वहां पर भी ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस को एनहेंस करती है. And last one is the parents manipulate offspring development rate, which increases overall offspring survival or reproductive success. और उनका जो मैनिपुलेट करते हैं पेरेंटल लेवल ऑफ पेरेंटल केयर जो है वो मैनिपुलेट करता है ऑफस्प्रिंग के डेवलपमेंट रेट को, जो उनकी सक्सेस रहता है अक्रॉस मल्टीपल लाइफ हिस्ट्री. That's all. Thank you for that. This is only the introduction of the parental care. In your syllabus in zoology part 1, zoology honors degree 1, part 1 honors, it is in paper 2 where you have to study this parental care. I will upload parental care on fishes in next video. Thank you. Stay home, stay safe.